حدیث نمبر 1374، مسلم شریف حدیث نمبر 7216، مشکات المصابیح شریف حدیث نمبر 126۔ معلوم ہوا کہ موت کے بعد قوتیں بڑھ جاتی ہیں، ہزارہا منو من مٹی کے دفن ہونے کے بعد باوجود کہ لوگوں کی جوتوں کی آہٹ سن لیتے ہیں۔ یہی حدیث میں ہے جس کو میں شارٹ کٹ پڑھا ہوں۔ انبیاء اولیاء زندگی میں مشرق اور مغرب دیکھتے ہوں، وہ بعد وفات فرش عرش کی یقیناً خبر رکھتے ہوں گے۔ انہیں تو اسی یہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے نا۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ان کا عزت احترام بہت بڑی ہے۔ تب جب سننے سے بھی انکار آپ تو زندہ مان لیے رزق ثابت کرنا، اب سننا اس سے ثابت ہو گیا، بخاری صحیح اور مسلم اور مشکات کی حدیث سے سننا بھی ثابت ہو گیا۔ تو ان سے بادل وصال اگر کہیں، فریاد کریں کہ میرے لیے دعا کیجئے، مجھے کچھ امداد چاہیے، تو اس سے آپ کو انکار کیوں ہوتا ہے؟ جبکہ سورۃ التحریم میں اللہ رب العزت صاف ارشاد فرمایا وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جن کا عقیدہ بن گیا کہ وہ جب سنتے ہیں، آہٹ سنتے ہیں، زندہ ہیں، تو ہم ان کو فریاد کریں گے کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ تو جن کا عقیدہ ہے وہ کریں۔ ہاں، اس میں غلط کہتا ہے نا، شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں نا۔ جن کا عقیدہ نہیں بن پا رہا ہے، ان کا عقل سلیم قبول نہیں کرتا ہے، ان کو بھی غلط نہ کہا جائے۔ نہیں، قبول نہیں، دلیل ملنے کے بعد اگر قبول نہ کرے تو یہ ہماری غلطی نہیں ہے۔ دیکھیے میری بات، عالم اسلام نے جن کے دلائل کو قابل قبول سمجھا وہی مسلمان ہے، نہیں تو پھر کافر ہو جائے گا، عالم اسلام نے ہر کے دلائل کو قابل قبول سمجھا تب تو مسلمان ہے، تبھی تو مسلمان ہے، نہیں تو کافر ہو جاتا قادیانی کی طرح۔ دیکھیے بخاری شریف میں، میں حدیث نمبر نہیں بتاؤں گا ابھی، بخاری شریف میں میری بات کا جواب بادل وصال، ہر جو مسلمان ہے ابھی دنیا میں، جو مسلک مسلمان ہے، کس بنیاد پر مسلک ہے؟ ایک حدیث کی نافرمانی کر دے گا کھلم کھلا، ایک قرآن کی آیت کی گمراہ کہیں گے، تو وہ کافر ہو جائے گا، گمراہ دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا، دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جی اس بات کو سمجھنا چاہیے تمام مخالف مسلمان کو کہ ان کے پاس قابل قبول دلائل موجود ہیں، ہم ان کو برا نہ سمجھیں۔ میں یہ ٹریک پہ جا رہا ہوں محترم، نہیں برا کہنے نا، بلغوا انی ولو آیتن کے مصداق کے مطابق ہمارا کام کیا ہونی چاہیے کہ حدیث اور قرآن کے پیغامات کو عام کریں، پہنچائیں۔ جب وہ انکار کرے نا، وہ اختلافی مسائل میں سنیے، اختلافی مسائل میں جب تک وہ اختلافی مسائل میں جب تک اختلافی مسائل چھوٹے چھوٹے جو فروعی مسائل اس کی بات نہ کریں، میرے خیال میں مناظرہ حرام ہے۔ نہیں، مناظرہ میرے خیال میں مناظرہ کرنا حرام ہے اختلافی مسائل میں۔ مناظرہ اس وقت کیے جائیں جب عقائد درست نہ ہوں، تو مناظرہ ضرور کرنی چاہیے تاکہ آپ لوگ، کی نظر میں اس کا عقائد درست نہیں ہے، اس کے نظر میں آپ کا عقائد درست نہیں ہے، تو نہیں حدیث اور قرآن کے جو براہ راست انکار کریں گے، ہمارا حدیث قرآن کے حساب سے، تو اس کے حساب سے میں تو کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو دیا ہے اس کا انکار کرتے ہیں، جو نعمت ان لوگوں کو اللہ اولیاء اللہ کو دیا ہے، ان نعمتوں کو جو حدیث اور قرآن سے ثابت ہے، اس کا انکار کرے تو اس سے باز آئے۔ ایسا نہیں کہ آدھی کتابوں پہ ایمان لائے اور آدھی کا انکار کرے، جسے مثلا بتا دے رہا ہوں، ایک دو حدیث بتا دوں گا، اس کے بعد میں رکھ دوں گا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1475 میں دیکھیے گا، یہ دلیل استعانت اور استغاثہ، یہ سب جو دلیلیں، میں یہ کہہ رہا ہوں مفتی صاحب، یہ سب جو دلیلیں قرآن میں حدیث میں آپ جو پیش کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا عقل سلیم تسلیم کرتا ہے؟ نہیں، کھلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب دلیل ملنے کے بعد انکار کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ حدیث اور قرآن کا انکار نہ کرو، نہیں مانا نہیں، میں انہی لوگوں کے مانا جو 365 ایف ہے نا، نہیں دیکھیے الگ نکال لیا نا، کمال الدین صاحب، میں نا انہی لوگوں کی، کمال احمد صاحب، میں انہی کی کتابوں جو 365 ایف ہے نا، انہی کی عبارت پڑھ کے سناتا ہوں، میں اس لیے بتا رہا ہوں، ان کے ترجمہ سنیے۔ انما الاعمال بالنیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا بھائی صاحب، نہیں کرتا ہے، لیکن ان کی نیت میں ہدایت کا راستہ دیکھیے، ہاں نہیں، انجانے میں اگر قرآن حدیث سے وہ اگر پھر رہا ہے، نہیں اگر دلیل ملنے کے بعد اگر انکار کرے تو میں، دلیل ملنے کے بعد انکار کرے تو میں اس کی ذمہ داری نہیں ہوں۔ حدیث سن لیجئے
बुखारी शरीफ के हदीस बता रहा अब था। वो भी अपना दलील पेश करते हैं ना अब दलील पेश कि करते हैं गैरुल्लाह की जिससे, मदद करना। देखिए है ना हदीस में कि अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं है, कुरान की आयतों में मिलेगा आपको, हदीस में भी मिलेगा। तो इससे वो मुराद तदबीक देने के लिए इसको इस तरह से तदबीक दी जाती है कि बाज माज अल्लाह हदीस और कुरान, कुरान में तो बिल्कुल टकराव नहीं है, हदीसों में भी टकराव नहीं मिलेगा, बाज मिलेगा ज़ईफ, बाज मिलेगा कवी, लेकिन उसमें तदबीक मुहद्दिसीन दिए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ताकत और कुव्वत है उसका खुद की है, अब मुफ्ती कोई साहब नहीं दिया उससे। मुफ्ती साहब बड़े जी बड़े मुहद्दिसीन गुजरे हैं जो अवलिया अल्लाह की मदद के कायल नहीं है। अभी मौजूदा जमाने में मौजूदा जमाने में पूरी दुनिया के बड़े आलिम दीन है तकी उस्मानी साहब। तकी उस्मानी साहब देवबंदी के बड़े आलिम हैं, वो हाँ, नहीं है, लेकिन पूरी उनके दुनिया तो के बड़े आलिम दीन है। देवबंदी में ना, यही देवबंदी मसल देवबंदी फिरका वाले तो अब बताइए कि मुतजाद चीज उनके अकायद मिलते हैं, बड़े बड़े अशरफ अली थानवी के भी, उसमें टकराव बहुत है, उनकी बात ना करें। मैं बुखारी और हदीस बता देता हूँ, आप सुन लीजिए, उसमें जाएंगे तो तफसीलवार इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुफ्तगू होगी। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1475 में यह दलील इस्तिआनत और इस्तिगासा की बराह रास्त अंबिया से, औलिया से हमारा मांगना है। सीधा अकीदा मोहतरम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तब ये कुरान की इस आयत पर हदीस और कुरान वातसिमू पे बिहब्लिल्लाहि जमीअन ये तो वला दावा हो तफर्रकू गया ना, लेकिन हैं। जब उनके दलील मिलने के बाद भी अगर उससे पीछे हटेंगे हम, नहीं अपने जो दलील जी काबिल कबूल है, सुनिए नहीं मेरी बात, अपनी मर्जी का मानेंगे आपके और दलील काबिल कबूल है, उनके भी दलील काबिल कबूल है, तो बुरा ना समझा उनकी जाए। उनके दलील ये है कि हम्म, बाज किताबों पे ईमान रखना और अफतुमिनून बिबादिल किताब तकफुरून बिबाद की मिस्दाक हो जाएगा वो, हाँ इसलिए तो पूरे तौर पर पूरी किताबों को मानेंगे, पूरे हम्म अहादीस को मानेंगे। हम्म तो देखिए काला इन्ना शमसा तदु तदनु यौमल क़ियामत हत्ता अरे यबलगुल इराक़ निस्फुल इज़्न। मदीना यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी मदीना सुनिए ना, यूनिवर्सिटी मैं है। दलील दे रहा हूँ, बगैर दलील की हम्म बात नहीं करूंगा मैं। क़यामत के हम्म दिन सूरज करीब होगा, हत्ता के पसीना से लोग कानों तक शराबोर रहेंगे। फबैनहुम कज़ालिक इस्तआनु बि आदम, तो सारी उम्मतें अहले महशर जमा होकर, जी अख्तर जी नज़ामी साहब, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, मदीना यूनिवर्सिटी है, जामिया अज़हर मिस्री यूनिवर्सिटी है। जामिया अजहर यूनिवर्सिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हाँ के पढ़े लिखे, वहाँ तो यूनिवर्सिटी पढ़ाए जाते हैं, वो तो हम्म बाद में ना अपने आप के अक्ल को तस्लीम करके, कियास आराई करके अपने जहन को खराब कर लेते हैं और दलील मिलने के बावजूद भी नकारा हो जाते हैं। जैसे कि कयामत के दिन बुखारी शरीफ की हदीस बता रहा था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से तमाम उम्मत इस्तिगासा हासिल करेंगे, मदद करेंगे, हम्म मदद तलब करेंगे, मदद हम्म मांगेंगे। तो हम्म आदम अलैहिस्सलाम जब मदद करेंगे, इस्तगास व इस्ताअनत कज़ालिक इस्तगासु बि आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गैस व देखिए गौस एक मदद बात तलब बताऊं, करेंगे। एक बात हाँ मेरे दिल में एक बात आ गई। जी मेरे जी दिल में एक बात आ गई। हम्म, मतलब मैं बहुत कीमती बात बोल रहा हूँ। जी जी फरमाएं, आप मैं अभी सुनूंगा। अभी मेरे दिलो दिमाग में अल्लाह ने डाला, बहुत हम्म, कीमती बात बोल रहा हूँ। आपने जहाँ से तालीम हासिल की, जी जी तो आला हजरत अहमद रजा खां बरेली रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हम्म, और बुजुर्गान दीन के वसीले और उनकी मदद तलब करने के कायल इदारे से आपने तालीम हासिल किया, ठीक है। जो कायल नहीं है, देखिए देखिए पहले देवबंद में जाके सुनिए मेरी बात, देवबंद में जाके 4 साल पढ़िए। नहीं नहीं, पहले नंबर तो नहीं, मैं आपका देव, नजरिया बदल जाएगा। आप कमाल सुनिए कमाल मेरी अहमद बात। साहब, नहीं, कमाल अहमद नहीं, साहब बहुत गौर से कीमती सुने, बात कर रहा हूँ मोहतरम। नहीं गौर मोहतरम से मैं बहुत सुने, कीमती बात कर रहा हूँ, मैं सुनिए मेरी कौन बात। शख्स हूँ पहले सुन नहीं, लीजिए। सुनिए मेरी बात। नहीं मेरे अंदर सुनिए, मेरे अंदर मोतदिल मिजाज क्यों आया मालूम नहीं है? नहीं नहीं, मैंने अहले हदीस इदारे से तालीम हासिल की, और अच्छा फिर हनफी इदारे से तालीम हासिल की, फिर मैं, बरेली इदारे से भी तालीम हासिल की, तीनों इदारे से मैंने तालीम हासिल किया। अच्छा ठीक है, आप किए होंगे, लेकिन मैं अहले हदीस के इदारे से मैं तालीम हासिल नहीं किया हूँ, क्यों झूठ बोलूँ हाँ इसमें। मैं हाँ, तो सबसे पहले मेरे आप जो बुनियाद है, जो थे ना, मेरे नहीं बुनियाद मैं सुन लीजिए। आपकी बात तब मानूंगा, आपकी बात तब मानूंगा कि आपने एक मेरी मसलक बात के ना इदारे से, माने जी, नहीं मेरी बात ना आपने माने, एक हदीस मसलक और सुनिए, कुरान की बात माने नहीं मैं। आपने एक मसलक के इदारे से आपने तालीम हासिल किया, सुनिए तो सुनिए आपका बता दे ध्यान रहा उस हूँ मैं, तरफ चला गया। नहीं नहीं, मैं एक मसलक से इदारे से मैं तालीम हासिल नहीं किया हूँ। सबसे पहले मैं देवबंदी मसलक में था और उसको ताइब होकर के मुसलमान बाद में बनाए, उससे तौबा मैंने किया। कहा देवबंदी मसलक में कब तक देवबंदी पढ़े? पहले मैं देवबंदी में 3-4 साल तक पढ़ा, जमाते राबिया तक, आलिम के राबिया तक कोर्स नहीं के। नहीं, तो उस वक्त बच्चे थे आप,
आपका दिलो जमात दिमाग में राबिया जब मौलवी नहीं नहीं जमात नहीं सालसा तक नहीं मौलवी बन जाते हैं, समझे। नहीं 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 नहीं, वो उसमें नहीं और आता है। जमात राबिया के बाद फिर मैं उसे आप फजीलत में सुनिए, आलिम और फजीलत 4 साल का उनकी जो कोर्स किताबें है, मेरे पास भरमार हैं, बहुत तो आप मताला नहीं नहीं किया हूं मैं। नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए मेरी बात। हम्म। एक ऐसी ऐसी देवबंदी मसलक का आदमी मुझसे बहस कर रहा था, देवबंदी तो खुद ताजाद में है जी, मदद के बारे में मैं क्या बताऊंगा। हैं? अगर उनके मसलक के बारे में अगर बताने लगूं तो माथा पीट कर रह जाएंगे आप। शिर्क अभी भी लिखा है और मदद के कायल भी हैं कहते हैं, हाँ और इनकार तो भी नहीं करते हैं। कोई लोग कहते हैं शिर्क है, कोई कहते हैं, कोई बड़े आलिम ही कहते हैं, उनके अकाबिर मोतमद किताबें, हवाला सुनिए अगर मेरी बात, दरकार मेरी है तो बात मैं सुनिए ना, दूं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं एक चीज जहां तक समझा हूँ, जी इस चीज को आप नकार दीजिए। अभी दुनिया में हिंदुस्तान लीजिए ना, बरसगीर में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जी 3 बड़ा मुल्क हैं। तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये 3 मुल्के में जो मेन चीज है क्या है कि 3 मसलक ज्यादा उभर के आते हैं। एक बरेली मसलक, और एक अहले हदीस मसलक, और एक देवबंदी मसलक, है ना। अहले हदीस तो बहुत कम है। हाँ उनके है, मस्जिद शाजो नादिर मिलेंगे कहीं नहीं कहीं, नहीं, एक बढ़ते बड़ा जा रहे टाउन हैं, में जैसे चेन्नई में बढ़ते देखिएगा, जा दो रहे हैं दो मोहतरम, ही बढ़ते हैं। जा रहे हैं, वो बढ़ते तो जा बढ़ रहे रहे हैं। हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए जो हदीस पाक में नहीं है नहीं, सुनिए कि मेरी बात, दूसरी जदीद बात कर जदीद रहा हूँ। फिरका पैदा होंगे कह करके, और उनकी आबादी बढ़ती नहीं नहीं जाएगी कह के, नहीं, तो रसूल का फरमान मौजूद आखिर है। क़यामत से पहले सब मुसलमान, सब दीन, पूरा 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 नहीं, दीन वो फैल जदीद जाएगा। फिरका है, उसको छोड़े ना, अहले हदीस की बात मत करें। वो तो जदीद फिरका है, न्यू पैदा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, उनके वो और आप देखेंगे फतावा हदीसिया में, और भी फतावा नजीरिया में जो सेलेक्ट कराया, ये क्या कहते हैं विक्टोरिया से, के नाम अपने अहले हदीस, उसको तो पहले गैर मजहब ला मजहब कहा जा रहा था। उनकी पहली किताबों पढ़ते हैं, मुताला करते हैं, तो उसमें मिलते हैं उसके दलील। जो हदीस कुरान से सिर्फ बात इतना बड़ा, करता है। इतना बड़ा मदीना यूनिवर्सिटी है, इतना बड़ा जामे हजर मुस्लिम हम्म। यूनिवर्सिटी है। न, उसमें मसाइल इख्तलाफ नहीं करता, हर किस्म के तलबा उसमें मौजूद होते हैं। जो शिया भी, लेकिन कादियानी भी, सब उसमें पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी है ना, कहाँ कॉलेज कादियानी कहाँ से पढ़ेगा, कादियानी काफिर नहीं, कहाँ से सब पढ़ेगा। जगह का तलबा पढ़ते हैं। हाँ, उसमें वहाँ कोई अलाव है, काफिरों के लिए भी अलाव है, काफिरों के लिए का भी अलाव है जामे अजहर में। सब जो चाहे पढ़ सकता नहीं है नहीं, उसमें जामे अजहर में काफिर के लिए भी अलाव है। नहीं, वो मुझे मालूम है, यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी है, जो चाहे पढ़े। लेकिन बहरहाल मदीना में काफिर नहीं, काफिर का अलाउ नहीं होगा। बहरहाल अफसोस लगा मुझे, हदीस का हवाला मैं दे रहा था, आप कुछ नहीं सुने। नहीं नहीं नहीं, मेरा मेरा एक ही चीज देखिए कहना है। देखिए कमाल अहमद साहब, हदीस और हम्म कुरान के सामने ने हमारा अकल कियास नहीं चलानी चाहिए, घुटना टेक देना चाहिए, वही मुसलमान की अलामत है। हम्म मैं हदीस और कुरान से मैं लड़ नहीं सकता, जी और हदीस और कुरान से मैं हट भी नहीं सकता, छोड़ भी नहीं सकता, इसलिए कि ये मेरे आसासा है, यही मेरे निजात का रास्ता है। जी। तो मैं हदीस और कुरान से आपसे दबाना इसमें गुजारिश करूंगा, हदीस और कुरान रेफरेंस मिलने के बाद अपनी अक्ल की कियास नहीं दौड़ानी चाहिए। लेकिन बहुत से देखता हूँ बरेलियों को अहले हदीस हो जाते हैं, देवबंदी को भी देखता हूँ अहले हदीस हो जाते हैं। अहले हदीस तो अभी का उनमें तो अपने देखिएगा, अबू दाऊद शरीफ की हदीस में मौजूद है, हर 100 साल में एक मुजद्दिद तशरीफ लाएंगे जो दीन की लेकिन तजदीद लेकिन करेंगे। अहले हदीस में सुनिए ना, अहले हदीस हाँ, में बददिमागा लोग ज्यादा हैं। हाँ, बददिमागा लोग, हाँ, बदअखलाक का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, बहुत बदअखलाक। बहुत नहीं बहुत परेशान करते नहीं, हैं। तो अहले हदीस मसलक बहुत ठोस है, बहुत ठोस है। लेकिन उसमें बदअखलाकी बहुत ज्यादा है, बदअखलाकी, बदतमीजियां, जिसकी वजह से, हाँ। लेकिन याद रखिए अख्तर निज़ामी साहब, जी जो जी। अहले हदीस का मसलक है, और अहले हदीस के मसलक में जो मदारिस दीनिया में पढ़ाई जाती है, माशाल्लाह हदीस का जखीरा, तो अहले हदीस में ही हदीस पढ़ाई जाती है। नहीं नहीं हनफी नहीं, इदारे में कहाँ हदीस पढ़ाई जाती है। नहीं नहीं, आप गलत में हैं। रात दिन काला अल्लाह काला रसूल इदारे इदारा में पढ़ाए जाते हैं, आप नहीं देखे नहीं होंगे नहीं, शायद, आप 8 साल इदारा में। सुनिए, 8 साल मदरसे हम में। लोग नहीं रात नहीं, दिन अहले हदीस मेहनत के करते इदारे थे, में सुनिए, सोने का वक्त नहीं मिलता था, अहले हदीस के इदारे में समझे। अरबी अव्वल से बुलुगराम हम्म। राम से शुरू होती है। अरबी अव्वल से अहले हदीस शुरू होती है, वो अरबी करते अव्वल, होंगे, अब दोम, तो जदीद सोम। है ना, वो अपने नए लेवल लगाने के लिए करेंगे। तो देखिएगा वो अपने अकाबिरीन के भी पैरवी नहीं करते, जिसे वहीदुज्जमा साहब हैं अहले हदीस का, वो काइल हैं। नहीं, और वो जमात इस्लामी के हैं वहीदुज्जमान साहब। वहीदुज्जमा साहब जमात इस्लामी नहीं है जी, वो उनके अकाबिरीन तस्लीम हाँ, किया वो है, मुजतहिद हैं, वो मुजतहिद हैं। मुस्तहिद मानते हैं वो लोग।
लेकिन हाँ फिर भी उनकी बातों से मुंह कर जाते हैं। उन्होंने इस्तिआनत को और ये साबित किया हदीस से, जिसे इब्ने माजा शरीफ हदीस नंबर लिखे हैं किताबों में, मेरे हाथ ही में किताब, इनकी किताब इब्न अच्छा हवाला दिए हैं इब्ने माजा शरीफ हदीस नंबर 1385 और तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 3578 और मिशकातुल मसाबी शरीफ हदीस नंबर 2495। किताबुद दावात बाबी जामी दुआ किताब लिखेंगे ये, इसमें जी लिखते हैं दुआ शरई इबादत है जैसा कि नमाज, तो ये गैरुल्लाह के लिए जायज नहीं है, समझे। और यही इन आयत में मुराद है जिनमें लफ्ज दुआ व वारिद हुआ है वो दुआ लुग़वी निदा के मानों में है, तो ये मुतलकन गैरुल्लाह के लिए जायज है, खा जिंदा को पुकारा जाए खा फौत शुदा को, बराबर है। इसका इस बात नाबीना की हदीस मौजूद है, जो हदीस का रेफरेंस मैं दिया, ये नाबीना के बारे में बताए और लिखे हैं, या मोहम्मदो इन्नी अतवज्जो बिका इला रब्बी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने परवरदिगार की तरफ आपके वसीले से तवज्जो होता हूँ। वसीला वो साबित जानते हैं, किए। मैं अली हदीसों से लड़ता हूँ। अब बताइए, इनके अकाबिरीन को कहते हैं कि हम लोग जूते से मारते हैं, तो बताइए अपने अकाबिरीन की इज्जत नहीं करता। ऐसे ऐसे लोग हैं अहले हदीस में, और इनकी किताब को ठुकरा देते हैं, हालांकि वो हदीस से साबित किए हैं और रेफरेंस दिए हैं 4 किताबों के, और मेरे हाथ में मौजूद है ये। वहीदुद्दीन साहब, हाँ, वहीदुज्जमा साहब बहुत बड़े आलिम इसमें शुमार होते हैं, और इसकी तारीफ भी बहुत उलमा उनके किए हैं, और ये भी आगे भी उनको देवबंदियों ने भी कबूल नहीं किया, अहले हदीस उलमा भी कबूल नहीं किए। नहीं कबूल किया है उनको। आपने ये मानते हैं, काजी शौकानी साहब उनको तारीफ किए हैं, ये बहुत बड़े आलिम हैं। इब्ने कय्यिम साहब, ये अहले हदीसों के, अच्छा। काजी शौकानी हो गए, बहुत बड़े आलिम हैं। इन तोहफतुल ज़ाकिरीन लिखे वो शेख इब्ने कय्यिम साहब, अल फस्लुस सानी वल खमूसु फिर रिजाल इदा अखज़तुर रिजलिही, ये भी उसमें साबित किए हैं कि हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पाँव सून हो गया, जिसको ये अदबुल मुफरद जो इमाम बुखारी हैं, वो हदीस में अदबुल मुफरद किताब लिखे हैं, हदीस नंबर 900 हदीस नंबर सुन लीजिए, 967 में लिखे हैं अदबुल मुफरद में, हजरत इब्ने उमर ने जो रिवायत की, या मोहम्मद, उनके वसीले से उनके पाँव का दर्द वगैरह वरम वगैरह ठीक हो गया। ये सहाबी के तरीके को हम अपनाएं, ना कि किसी वहाबी का, समझे। तो नहीं, वसीला तो सुनो, वसीला जो हयात है हमारे दरमियान, जो हमारे नजर में बादल विसाल की बात इसमें साबित किए हैं। बादल विसाल के बारे में जो है एकदम बिल्कुल साफ सुथरी हदीस, साफ सुथरी कुरान की आयत पेश कीजिए। नहीं, बादल विसाल अगले मैं तो साबित कर दिया ना, हदीस से साबित किया। नहीं, उससे साबित नहीं होता। बादल विसाल साबित नहीं हुआ। अदबुल मुफरद इमाम बुखारी की बात आप सुनेंगे। हाँ, बोलिए, बादल विसाल में मैं सुन रहा हूँ। बादल विसाल इमाम बुखारी हदीस अदबुल मुफरद में, ये हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पाँव सुन हो गया था, तो उन्होंने या मोहम्मद पुकारा, जबकि रूम का बादशाह शहीद के को इसमें लंबी तौर पर ये लिखे हैं, ये वहीदुज्जमा ही लिखे हैं, और ये बात उसमें जो तस्लीम किए हैं, इब्ने कय्यिम साहब का भी नाम है, काजी शौकानी का भी नाम है। तो इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पाँव जो सुन की है तो किबले तो यहाँ पर मदद और इस्तिगासा चाहे बादल इंतकाल के बाद वो वसीला भी और मदद भी चाहे। हदीस नहीं, ये हदीस बयान किए हैं, अल-अदबुल मुफरद के हवाला दिए हैं, हदीस नंबर भी लिखे हैं उसमें। हाँ, तो हदीस की बात कीजिए ना, वहीदुद्दीन की क्यों कर रहे हैं? तो वो जो लिखे हैं उनकी किताब ना मैं उठाया हूँ, अदबुल मुफरद का हवाला दिए हैं वो, और हदीस नंबर मैं खोल के देखा हूँ अदबुल मुफरद में, तो वो बहु हदीस मौजूद है। नहीं, कोई मरफू हदीस हो तो आप पेश कर दीजिएगा कभी। ये मरफू हदीस है। हाँ, निकाल के दिखा दीजिएगा कि बादल विसाल बुजुर्गान दीन का वसीला, या उनसे मदद मांगी, उनके जरिए से मदद मांगी जा सकती है। काजी शौकानी साहब जो शिर्क कहते हैं, ये सब उलमाए मुहद्दिसीन उलमाए किराम की बात मत कीजिए। कोई हदीस, कोई मरफू हदीस जो है, हदीस तो आपको मैं बताया मदद के लिए, कितना हदीस में देने की कोशिश किया, तो आप सुने भी नहीं। मैं कहा कि हदीस और कुरान के सामने आप घुटना टेक दें। मतलब आप निकालते हैं ना, हदीस मतलब नहीं निकालते, साफ सुथरी हदीस पर मौजूद है ना।
بتائیے بتائیے دوبارہ بتائیے. دوبارہ میں کیا بتاؤں؟ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام، میں بتا رہا تھا استغاثہ کے بخاری شریف کی حدیث نمبر 1475 میں، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تمام لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ لوگ کہیں گے استغاثہ یعنی آپ ہماری مدد کریں. اگر بتائیے مدد اگر شرک ہوتا تو حضرت آدم، وہ تو قیامت کے دن تو وہ اٹھیں گے نا، تو سامنے آدم علیہ السلام سامنے نظر تو آئیں گے. غیر اللہ نہ ہے وہ، اللہ تھوڑے بن جائیں گے وہ قیامت کے دن. نہیں اس وقت وہ حدیث میں بتا رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو بادل وصال ہی کی بات ہے یہ. وہ تو قیامت کے دن جب زندہ ہو کے اور یہ بھی بخاری شریف میں کئی حدیثوں میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدد کیے 50 نمازوں کے لیے، امت کے لیے مدد کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں؟ اس کا بھی انکار کریں. بادل وصال، وہ تو بادل وصال ہی زندہ ہوں گے، بادل وصال ہی بتائیں جناب، زندہ ہوں گے. کہہ رہے ہیں کہ بادل وصال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، کتنی نمازیں ملی ان کو؟ کتنی نمازیں ملی تھی؟ ان باتوں سے کہاں واضح ہوتا ہے؟ نہیں بتا رہے ہیں کتنی نمازوں ملی تھی وہ بتائیں نا. کتنی نمازیں ملی تھی؟ 50 نمازیں ملی تھی. نہیں چھوڑیے نا، اس سے کہاں. نہیں حدیث کو کیوں نہیں سنتے ہیں آپ؟ مجھے تعجب لگتا ہے. بادل وصال بزرگان دین کی مدد طلب کر بتا رہا ہوں میں، حدیث بتائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کہے کہ آپ برائے مہربانی کچھ کم کرائیے، جائیے معاف کرائیے. تو ایک حدیث میں آتا ہے، 2 طرح کے حدیث موجود ہیں، ایک میں 10 آخر میں 5 اور ایک میں 5 کر کے 9 بار جانا، تشریف لے جانا مقصود ہوتا ہے. یعنی 7ویں آسمان بغیر براق کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، آسمانوں کے سفر. اور یہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ زمین و آسمان کے ایک آسمان سے ایک 500 سال کا مسافت ہے نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس امت کی مدد کیے، فرض کو معاف کرائے. فرض میں کسی کے معافی نہیں ہوتی، کوئی معاف نہیں کرا سکتا ہے، لیکن نبیوں کی یقین تھا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرض کو بھی معاف کرا سکتے ہیں. اس کے اندر اتنی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے، اسی لیے تو مدد کی اس امت کی. اور اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی احسان ہم زندگی تک نہیں بھولیں گے. رہتے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، میں نعوذ باللہ پڑھ رہا ہوں. کیوں نعوذ باللہ پڑھ رہا ہوں؟ اس واقعہ کو فٹ کر رہے ہیں کہ نہیں وہ 5 نماز بچی نے کس کے ذریعے سے ہوئے؟ نہیں محترم، اللہ غنی، اللہ غنی. 50 وقت کی نماز پڑھیں گے اگر غیر اللہ سے محترم، وہ تو واقعہ وہ تو سب دنیا جانتی ہے، ہم بھی جانتے ہیں ایسا ہوا. جاننے سے نہیں، ماننا ہے. ماننا ہے. آپ تھوڑے ثابت ہوتا ہے کہ بزرگان دین سے مدد طلب کی جائے. نہیں، آپ کو ماننا ہے اس سے. نہیں محترم، نعوذ باللہ، اللہ غنی، اس سے تھوڑے واضح ہوتا ہے. نہیں نعوذ باللہ، اس طرح کا اٹانگ پٹانگ دلیل دیتے ہیں. نہیں دلیل تو آپ کو میں ایک سمجھانے کے طور پر بتایا. یہ دلیل کہاں سے ثابت ہوا؟ استغفر اللہ، استغفر. آپ وسیلہ کا بھی انکار کیے. بھائی بزرگان دین جو بادل وصال اس سے مدد، ان کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگی جائے، وہ ثابت کیجیے نا. بادل وصال کا آپ کو تو ادب المفرد کا وحید الزمان جو لکھے اس کا بھی بتایا. ارے وحید الزمان تھوڑے نہیں، وہ وحید ایک علامہ ہے. نہیں ہے نا. نبی کی حدیث سے ثابت کیجیے نا. آپ کو میں کئی حدیثیں بھی بتا دیا ہوں. نہیں، اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے. وہ آپ فٹ کر دیتے ہیں، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں. فٹ نہیں ہوتا ہے، وہ حدیث کو یہاں لا کے فٹ کر دیتے ہیں. نہیں وہ غلط فہمی ہے. جیسے سنیے بادل وصال اس کی وجہ یہی تو بھی سنیے، تو بھی میں کیا کہہ رہا ہوں، سنیے، تو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا نظریہ ہے کہ وہ یہ اس سے ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اختیار کیجئے. بادل وصال ہی صاف ستھری حدیث آپ کو بتا دیتا ہوں. آخری حدیث سنیے گا غور سے. بخاری شریف نوٹ کر لیجیے، حدیث نمبر 5896. مشکات المصابیح شریف حدیث نمبر 4568. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ دلیل مانگ رہے ہیں، تو اس لیے میں اس کو پڑھ رہا ہوں. حالانکہ کثیر حدیث ہے. نبی کے علاوہ بزرگان دین کا، نبی کے علاوے کی بات بزرگان دین کا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں جائز ملتی ہیں. رسول صحابہ کا نام میں طریقے دیکھیں گے ہم لوگ. جیسے
हजरत वो इब्ने उमर के जो अदबुल मुफरत का मैं हवाला दिया तो आप इनकार किए, पाँव वरम हो गया, तो वो हदीस का वहीदुज्जमा साहब का पेश किया तो उसको भी इनकार कर दिए। नबी के बात नबी क्यों अल्लाह नहीं मानते, हम लोग गैरुल्लाह ही मानते हैं। अल्लाह का रसूल, अल्लाह के नबी और हमारे आका मानते हैं, और उन्हीं से दलील हम मांगते हैं, मिलती है हमें। उस्मान बिन अब्दुल्लाह बिन मोहिब से मरवी है, रिवायत है कि वो कहते हैं कि मुझे मेरे घर वालों ने हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ पानी का एक प्याला देकर भेजा। लोगों की आदत थी कि जब किसी शख्स की आंख में या किसी और जगह जख्म पहुंचता तो आपके पास तगायुर यानी इलाज के लिए देकर कुछ कटोरा वगैरह देकर भेज देते। बस उम्मुल मोमिनीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक निकालती, जिन्हें वो घंटी की शक्ल में एक चांदी के डिबिया में रखा करती थी। वो इस डिबिया को पानी में डालकर निकालती, बस वो शख्स उस पानी को पी लेता और तंदुरुस्त हो जाता। बताइए बीमारी के शफा करने वाला कौन है? कौन है? बीमारी के शफा करने वाला अल्लाह है ना। बादल वरसल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक की बरकत से उनको शिफा मिल रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक से ना। जी जी जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुब्बा भी उनके बादल विसाल का भी आप मैं हदीस में दिया कि उनके बादल विसाल भी इस्तेआनत हासिल कर रहे थे सहाबे कराम। दुरुस्त है, बुजुर्गान दीन का कहिए, वली अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावे किसी बुजुर्गान दीन के बारे में बताइए, साबित कीजिए। औलिया किराम के बारे में आपको चाहिए ना। हाँ, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की मुबारक की फजीलत हुई। हाँ जी जी जी, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिगासा आप जायज मानते हैं? आप अब तो हदीस मान लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप ये मान लीजिए, मान लिए। तो मैं बुजुर्गान दीन का बता दे रहा हूँ ताकि आपको भी मिले। सुनन इब्न माजा शरीफ जिल्द नंबर 2 को या मोहम्मद सुनिए ना, नबी हम या मोहम्मद बोलते हैं, या मोहम्मद के कायल हम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, या रसूलुल्लाह भी बोल दीजिए एक बार। या रसूलुल्लाह बोलता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, या रसूलुल्लाह बोलता हूँ। इनको बोलने से कुछ लोग शिर्क करार देता है ना। नहीं, कितने देवबंदियों से, कितने अहले हदीसों से लड़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रसूलुल्लाह मैं बोलता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जरूर बोले जरूर बोले, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बहुत मेहनत करता हूँ कि मैं मेरा अकीदा दुरुस्त हो। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है कमाल अहमद साहब, मैं आपको बादल विसाल के या रसूलुल्लाह बोलता हूँ अख्तर निज़ामी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह जरूर बोला करें, या रसूलुल्लाह के नारे से एक बोलिए ना। तलकीन भी करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, जो कायल नहीं उनको बोलता हूँ, भाई या नबी अल्लाह या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने या रसूलुल्लाह का नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो यही तो समझाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत देरी बात हो गई, आप बादल विसाल का इंशाअल्लाह अजीज हदीस कसरत, आप औलिया किराम के बारे में आप दलाइल चाहते हैं। हाँ जरा पेश कर, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जरूर मैं पेश करूंगा। सुनिए, गैर जानीदार होके सुनता हूँ, जरूर जरूर, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। नहीं गैर जानीदार होके सुनेंगे तभी तो हिदायत मिलेगी। जरूर जरूर, जब हमारे पास हदीस और कुरान की दलाइल आते हैं तो हम जिद हट नहीं करेंगे, बल्कि सरखम करके तस्लीम करेंगे। निज़ामी साहब, अगर कोई गुस्ताखी हो आपकी शान में, नहीं, वैसी बात नहीं है। मेरा जिम्मेदारी थी कि आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इज्जत एहतराम से आपका, अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। और अच्छा मोहतरम जी, अच्छा अस्सलाम वालेकुम। और आपको याद रखिए, मैं मुखलिस मुसलमान में शुमार करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा दिल और दिमाग कहता है कि आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जनाब, मैं दलाइल के बगैर बात नहीं करूंगा। जो भी दलील मौजूद रहेंगे तब हम करेंगे, दलील बगैर दलील खाली पोकट के इधर उधर के बकवासें ना करें। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। ठीक है, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।